Hello students, today through this video I would like to discuss some important essays of writing task 2. The first statement is many people believe that learning a foreign language is a very difficult task. What are the most difficult things about learning a foreign language? What are the best ways to overcome them? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लर्न करना फॉरेन लैंग्वेज को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आपके अकॉर्डिंग मतलब व्हाट आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स, क्या जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉरेन लैंग्वेज के रिगार्डिंग, क्या बेस्ट वेज है इनको ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ से डिमांड लाइन से हमें हाईलाइट हो रहा है कि हमने क्या लिखना है, प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने की वाइल लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज विच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज लर्नर्स फेस। सो वी कैन से दे हैव अ इशू ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि उनको इशू, दे हैव एन इशू ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि उनको इशू है प्रोनाउंसिएशन का, हाउ टू प्रोनाउंस द स्पेसिफिक वर्ड when they learn a foreign language. If I talk about the second problem, the second problem is that the correct use of a specific word. Sometimes students face difficulty or the learners face difficulty in the correct use of the vocab in a sentence, because a single word can change the मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस। क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके सिनोनिम्स होते हैं, तो इनकरेक्ट यूज ऑफ वोकैब भी आता है, उनको इशू रहता है ये चीज़ का कि करेक्ट कैसे करना है यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड का इन अ स्पेसिफिक सेंटेंस वाइल एक्सप्लेनिंग द थिंग। और क्या रहता है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम रहता है। हाउ टू ओवरकम दिस, प्रोनाउंसिएशन के लिए विद द हेल्प ऑफ internet they can check the pronunciation of a specific word, or they for learning the correct uses of a vocab or a word they can use the dictionary, or they can seek the help of a specific language trainer which will help them in which will help them in dealing with all the difficulties which they face while learning a specific language. At the end we can say practice makes man perfect. The next statement is nowadays many people choose to be self-employed rather to work for a company or organization. Why might this be the case? What could be the disadvantages of being self-employed? नाउडेज आजकल क्या हो रहा है, मैनी पीपल चूज कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय होना रेदर देन वर्किंग फॉर अ कंपनी। एक कंपनी के लिए काम करने के बजाय क्या कारण है कि क्यों वो सेल्फ एम्प्लॉय होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? बिकॉज पीपल हैव बिकम एगोटिस्ट, दे डोंट लाइक टू वर्क विद समवन और अंडर समवन, एज दे डू नॉट लाइक द सुपरविजन, उनको सुपरविजन पसंद नहीं है, सो दे अवॉइड टू डू वर्क विद अ कंपनी। सेकेंड, nowadays people want to live a liberal life, they do not want to live in a place where there are a lot of restrictions like for time frame, or in a company they have to follow a specific decorum, so people hesitate to follow all these things, therefore they do not like to work with a company. If I talk about the another thing, everyone want to start up his or her own business, बिकॉज सेल्फ रिलायंट होना और बिजनेस वेंचर सेटअप करना इज अ ड्रीम ऑफ एवरी पर्सन इन द कंटेम्प्रेरी एरा, सो दे वॉन्ट टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड. वॉट आर द डिसएडवांटेजेस? Due to lack of knowledge, a person may fail to get the success. This is the biggest drawback. There is a huge threat, बहुत ज़्यादा threat है to get money, to earn profit, और इसमें क्या है, बहुत बड़ा risk है, we can say. If I talk about the another disadvantage, learners अगर self employed होते हैं, they avoid to work with a company, then they may fail to get knowledge about the different aspects of the business or the market or the prevailing policies of the market or the strategies, so this may put negative impact on their hard work, or they feel stressed that despite doing the hard work why they are not getting the success. तो ये भी drawbacks हो सकते हैं. इससे क्या हो सकता है, they become victim of stress or other kind of health issue. The next is multicultural societies where people of different groups live together bring more benefits than drawbacks to country. To what extent do you agree or disagree? Whenever you will get the statement like to what extent do you agree or disagree, I would like to suggest to students never decide before writing the task that you will go with the agree part or you will go with the disagree part. First plan your task. पहले आप अपना टास्क प्लान करें. अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे दैट यू आर इन द फेवर और यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग, तो आप क्या होगा, फोर्सफुली उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, तो इससे क्या हो सकता है कि आपके जो आइडियाज़ हो सकते हैं वो इनइफेक्टिव भी हो सकते हैं. तो हम दोनों साइड डिस्कस करके देखते हैं कि एग्री के क्या हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स लेके आए हैं ड्रॉबैक्स के कंपेरेटिवली. येस, यूनिटी आ रहा है,
कल्चरल नॉलेज इनकी इंक्रीज हो रही है, गेट एक्सपीरियंस ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स। इससे क्या हो रहा है कि वाइडन देयर हॉरिजॉन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वी कैन से। सेकंड क्या हो रहा है, दे गेट मोर चांस टू सेलिब्रेट द थिंग, क्योंकि मल्टी कल्चर में उनको क्या बेनिफिट होगा कि ज़्यादा फेस्टिवल्स आएंगे, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, दे गेट अ चांस टू सेलिब्रेट द थिंग्स टुगेदर विद यूनिटी एंड हारमोनी। सो दिस हेल्प्स इन बूस्टिंग देयर रिलेशंस। तो जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनके जो रिलेशन है वो बूस्ट होंगे। सो देयर आर टू बेनिफिट्स। इफ आई टॉक अबाउट द डार्क साइड, तो क्या होगा, कल्चरल लॉस, उनकी ओन कल्चरल आइडेंटिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो ये क्या रहेगा, सबसे बड़ा कल्चरल थ्रेट, कल्चरल डिसअपियरेंस हो जाएगा। सो येस, I agree with the given notion and I will elaborate my views regarding this in the below paragraph. तो हम क्या करेंगे, एग्री के फेवर में एक पॉइंट हम बॉडी पैराग्राफ 1 में हाईलाइट कर देंगे, अनदर इज इन द बॉडी पैराग्राफ 2, देन आप कंक्लूजन हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि आपने देखा है कि आपके पास दो एग्री की बन रही हैं। देन if I talk about the last statement, then last statement is, in some countries criminal trials are shown on television for public. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? Similarly इस केस में भी आपने पहले एडवांटेजेस को डिस्कस नहीं करना है, पहले आपने नहीं सोचना है कि मैं एडवांटेजेस ज़्यादा लिखूंगा, मैं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा लिखूंगा। पहले आप क्या करेंगे, यू विल प्लान योर टास्क, आप अपने टास्क को प्लान करेंगे, आप दोनों साइड्स को कंसिडर करके फिर एनालाइज करेंगे कि मुझे ड्रॉबैक्स ज़्यादा हाईलाइट करना है या बेनिफिट ज़्यादा हाईलाइट करना है। क्रिमिनल ट्रायल्स का जब किससे, क्रिमिनल के जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, जब उनका हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, उसे कहते हैं क्रिमिनल ट्रायल्स। कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल्स जो हैं ये टीवी पे दिखाए जाने चाहिए पब्लिक को, इस चीज़ के क्या बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो येस, इट विल स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द डिफरेंट टर्म्स ऑफ लॉज के डिफरेंट टर्म्स के रिगार्डिंग उनमें एक अवेयरनेस आएगी, ठीक है, उन्हें नॉलेज एनहांस होगा, कॉग्निटिव ग्रोथ होगा। लेकिन दूसरा ड्रॉबैक क्या रहेगा इसका, दूसरा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि मे पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर। तो क्या होता है, व्यूअर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मे बी, है ना, जैसे जो प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं समटाइम्स वो भी किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाती हैं। तो इससे क्या होते हैं, दे कैन टेक सम एक्शन अगेंस्ट द ज्यूरी और द जज हु गिव द ज्यूरिसडिक्शन। तो उस पर्सन की लाइफ और उसको भी क्या हो सकता है, थ्रेट पोज हो सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि कोर्ट की एक डिग्निटी होती है, एक प्रिवेसी होती है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जो क्या होगी, रिवील हो जाएगी पब्लिकली, विच इज़ नॉट गुड। सो ये ड्रॉबैक हो सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट इन द फेवर की ये चीज़ हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो डिसएडवांटेजेस हाईलाइट करी हैं और एक एडवांटेज। सो आई कैन से आई पर्सनली बिलीव दैट द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कंसेप्ट ओवरशैडो इट्स मेरिट्स विच आई विल एक्सप्लेन इन द बिलो पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ 1 में आप एक ड्रॉबैक, बॉडी पैराग्राफ 2 में दूसरी ड्रॉबैक, दैन आप एक हाउएवर द बेनिफिट इज दैट करके हाईलाइट करेंगे, दैन आप क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आपने कभी भी कुछ भी नया नहीं लिखना है। द कंटेंट विच यू हैव रिटन इन द बॉडी पैराग्राफ 1 and 2, you just have to wrap up it in the conclusion. I hope you like this video and you will definitely do brainstorming of multiple writing tasks to statements before going to your exam. Wish you best of luck and thank you very much.